Hello, hello student. Good morning. In economics, lesson number 7, Indian economy में पेज नंबर 82। लास्ट टाइम हम लोग इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़े थे। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिर पेज नंबर 81 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, उसमें ग्रोथ रेट पढ़े थे। उसके बाद एक ग्रोथ रेट में द नेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट NNP, मतलब नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट FC एट constant price level in year 1950-51 was rupees 2,69,724 crore, which increased to rupees 87,51,834 crore in the year 2013-14। देखो ये इंक्रीज होके नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम बराबर मतलब चौखी आवक। Thus, in a period of 63 years, the NNV has grown by 18 times। बराबर मतलब हमारी राष्ट्रीय आवक में कितना 18 टाइम्स ग्रोथ हुआ है, ग्रोन हुआ है, बराबर वृद्धि हुई है, વધારો हमारी जो। तो चेंजिंग सेकेंड पॉइंट में चेंजिंग शेयर ऑफ द वेरियस सेक्टर्स इन द इनकम, वेरियस सेक्टर इन द नेशनल इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बराबर राष्ट्रीय आवक में विविध क्षेत्र का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो एज अ नेशन स्टार्ट डेवलपिंग the contribution of its industrial and the service sector in national income and employment increases. It means that now people have to depend less on their traditional sector, agriculture, and with the improvements in the technology and the capital formation, they get employment in the relatively more productive sector wise. Industrial sector and the service sector. India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991. The following table shows the increasing share of the industrial and the service sector in national income. देखो भारत टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंफॉर्मेशन they get employment in a relatively more productive sectors wise. Industrial sector and the service sector, India's service sector has started growing significantly after the reforms of the 1991. तो टेबल के द्वारा हमको ये पूरा पैराग्राफ सही से समझना। शेयर ऑफ द वेरियस सेक्टर इन द NI नेशनल इनकम, तो उसमें ईयर 1951, 1991, 2000, 2001 एंड 14-15। तो एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर उसके साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में 53.1, 29.6, 22.3 और 17.6 शेयर ऑफ द मतलब कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का और उसके एक्टिविटी कितना है। इंडस्ट्रीज़ में कंसर्न बढ़ावा हुआ है 16.6 टू 27.7, 27.3, 29.7। सर्विस सेक्टर उसमें 30.3, 42.7, 50.4, 52.7। इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में से हम लोग ने ये डेटा प्राप्त किए हैं। We observe that the share of agriculture in national income has declined over the year and that of the industrial and the service sector has increased. देखो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में बढ़ावा हुआ है कंट्रीब्यूशन में नेशनल इनकम के, और एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हुआ है, बराबर डेक्लाइन हुआ है।
4.3 में पर कैपिटा इनकम मतलब माथादीठ आवक बराबर. तो द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट कंस्टेंट प्राइस इन द 1950-51 was rupees 7,114 which increased to rupees 39,904 in the 2013-14. Thus, in a period of 63 years, PCI per capita income increased by the approximately 5.6 times. Okay? माथादीठ आवक में भी बढ़ा हुआ. Between the periods from the 1950-51 to 1990-91, it increased by the about 1.6%, while after 1991, it increased by 5.5%. We observe that the share of agriculture in the employment has declined over the years, and that of the industrial and the service sector has increased. Okay, level of employment in India. Employment is revived in three sectors: प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंडरी. सेकेंड में इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वारिंग etc. In other words, the includes at the production activities. And third, service sector. It includes all activities pertaining to trade, banking, transport, information and broadcasting, health, education and so on. Okay. So, share of various sectors in employment में, रोजगारी में. तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, उसमें 1951, 1991, 2001 एंड 2011-12 तक का डेटा हमको इधर दिया है. उसमें देखो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 72.151 में था, जो 91 में 66.9 कम हो गया, 2001 में 56.7 हो गया, 2011-12 और 48.9 पर हो गया. मतलब इसमें ये धीरे कम हो, डेक्लाइन ही हुआ है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट. सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.6, 12.7, 18.1, 24.2 ये बढ़ा है बराबर, ईयर बाय ईयर ये बढ़ा है. सर्विस सेक्टर में सेवा क्षेत्र मतलब 17.3, 20.4, 25.2, 26.9 इसमें भी बढ़ा है बराबर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डेक्लाइन हुआ है. ये भी सोर्सेस हमको कहाँ से मिला है? इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 बराबर, उसमें से प्राप्त हुआ है डेटा हमको. ओके, नाउ turn your page. In India, year 1951, the contribution of primary sector in employment was 72.1%. That of industrial sector was 10.6%, and the service sector was 17.3%. In 1991, the contribution of primary sector in employment was 66.9%, industrial sector was 12.7% and service sector was 20.4%. ओके, जो हम लोग ने ये टेबल में पढ़ा. While year 2001, the share of primary sector 56.7%, industrial sector was 18.2% and the service sector was 25.2%. एंड 11-12 जो हमने टेबल में देखा वही डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं. प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वॉज 48.9%,
that the secondary sector was 24.3% and service sector was 26.9%. मतलब प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है और सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में बढ़ावा हुआ है. 51, 91, 2001 और 11-12 में बढ़ावा हुआ है. बराबर. Thus it is seen that from 1951 to 2011-12 the employment has shifted from primary sector to industrial and the service sectors. 7.4.5 में इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज़. बराबर. मतलब जो पायानी ज़रूरियात मतलब पायानी सुविधा हमारी जो बेसिक नीड्स है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. बराबर. क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें Indian has shown significant improvement in the provisions of various utilities in the urban as well as in rural areas like electricity, water supply, roads, irrigation, transport, communication, health, education and such. ऐसी बहुत सारी हमारी बेसिक नीड्स में चेंज आया. जैसे कि पहले के इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई. एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह बन गई. हमारे हेल्थ के लिए मतलब हेल्थ सेंटर बनवाए गए. मतलब ये दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सच. ऐसी बहुत सारी हम लोग को आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को मिली है. बराबर. सो फर्स्ट इरिगेशन. इन 1951 में ओनली 22.6 million hectare of land across the country was irrigated, which increased to 63 million hectare. देखो कहाँ 22.6 million hectare, इधर 63 million hectares इन 2012-13 में इरीगेटेड. मतलब जो सूखी ज़मीन थी वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहर वगैरह बना के. Thus about 45% of the total agricultural land has irrigation facilities in present times. Okay. दूसरा है लिटरेसी मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, शिक्षण सुविधा. The literacy rate which was 18.33% in the 1950. ओके. 1950 का डेटा जो देखा जाए तो 1950 में लिटरेसी रेट ओनली 18.33% रोज टू 73% इन 2011 और जो बढ़ के 2011 में 73% हो गया एजुकेशन हमारे देश में. और सोसिस इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 में से हम लोग को मिला है ये डेटा. मतलब ये डेटा हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें से हमने प्राप्त किया. इन 1950s there was 20 universities and 500 colleges which increased to 719 and 35,000 respectively by 2013-14. अभी इससे भी ज़्यादा है. This indicates rise in the higher education. Okay. Now electricity. The electricity generation which has around 2300 megawatt in the 1950-51 increase in the 2,43,000 megawatts in the 2011-12. Okay. Road networks. बराबर. रोड रास्ता सुविधा. In the present times India belongs to the list of countries with longest road network. बराबर. longest road network में भारत का नाम आता है. It was approximately 48.6 lakhs kilometer of concrete road today. Okay, understand? Now railways.
Indian railway network is the fourth largest today with a length of 65,000 kilometer. फोर्थ लार्जेस्ट में है. Thus, India is a progressing fast and is now a prestigious emerging economy. भारत बहुत ही झड़पी विकास प्रोग्रेस प्रगति कर रहा है, ये सब देखा जाए तो. Thus, per capita consumption of the essential commodities has increased. जो उपयोगिता पर कैपिटा कंजप्शन सम खरीद सकते बड़ी है. प्रोग्रेस इज मेड इन द एरियाज ऑफ साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज एंड सो ऑन. बराबर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है. बराबर, जो सरेराश वही. In the International Comparison Program (ICP) initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after USA and China, while in 2005 India was at the 10th position. देखो 2005 में भारत 10वें नंबर पे था. आज विश्व की जो कंपैरिजन में थर्ड रैंक पे है. 2011 में जब वर्ल्ड बैंक ने सर्वेक्षण किया, बराबर, तो 2011 में भारत थर्ड नंबर पे आ गया, 10th नंबर पे. मतलब हम लोग ने बहुत ही झड़पी प्रोग्रेस किया. ओके, अंडरस्टैंड. आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल द लेसन नंबर 7. Now exercise, write down in your notebook compulsory and carefully whole exercise. Okay, and write down the glossary of lesson in your notebook compulsory and understand the glossary. The words दिए है: occupational structure, national income, basic utilities, excise, land revenues, per capita income, etc. Okay,